بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے اور شکم مبارک پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے باندھا ہوا ہے۔ میں ابو طلحہ کے پاس گیا اور ان سے تذکرہ کیا۔ وہ میری والدہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ بولی، ہاں، روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تنہا آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھر جائے گا، اور اگر کسی کو ساتھ لے کر آئیں تو کھانا کم پڑ جائے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، انس تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو انتظار کرو۔ جب صحابہ چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے پردے کے پاس پہنچ جائیں تو عرض کرو کہ میرے ماں باپ نے آپ کو بلایا ہے۔ غرض میں نے اپنے والد کے کہنے کے مطابق عمل کیا، مگر جب میں نے عرض کی کہ میرے باپ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو واپس بلا لیا اور میرا ہاتھ مضبوط پکڑ لیا۔ جب ہم مکان کے قریب پہنچے تو آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت میں گھر میں داخل ہوا تو صحابہ کی اس کثرت سے میں خود غمگین تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بات کہہ دی تھی جس طرح آپ نے بتائی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو واپس بلا لیا اور سب کو لے کر آ گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو طلحہ باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے اس کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کو تنہا لے آئے، مگر آپ جس قدر لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں اتنا کھانا میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھر میں جاؤ، جو کھانا تمہارے پاس ہے اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ابو طلحہ مکان میں گئے اور کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہے جمع کر کے لے آؤ۔ چنانچہ ہم سب جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ایک بوریے پر اسے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکت کی دعا کی اور فرمایا، 8 آدمی آئیں۔ چنانچہ 8 آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کھانے پر رکھ دیا اور فرمایا، بسم اللہ کر کے شروع کرو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گولیوں کے درمیان سے کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ 8 سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 8 اشخاص مزید آئیں۔ غرض اس طرح 8 آدمی آتے گئے، یہاں تک کہ 80 آدمی آئے اور سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں اور ابو طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم بھی کھا کر سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر سے اپنا دست مبارک اٹھا لیا اور فرمایا، ام سلیم، یہ تمہارا کھانا اتنا ہی ہے جتنا تم میرے پاس لائی تھی۔ ام سلیم نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر میں نے ان تمام لوگوں کو کھاتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتی۔ جب ایک درخت نے کلمہ شہادت پڑھا، ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے کچھ دکھلا دیں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو۔ پوچھا، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائیے۔ آپ نے فرمایا، تم جاؤ اور اسے بلاؤ۔ عربی درخت کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو طلب کرتے ہیں۔ وہ درخت ایک طرف جھکا اور اس کی جڑیں علیحدہ ہو گئیں، پھر دوسری طرف جھکا، اس طرف کی جڑیں علیحدہ ہو گئیں، اور وہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ نے یہ موضع دیکھ کر کہا، مجھے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے فرمایا کہ واپس چلا جا۔ چنانچہ درخت واپس جا کر اپنی جگہ پر جم گیا۔ عراقی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اذن دیجیے کہ میں آپ کے سر مبارک اور پاؤں کو بوسہ دوں۔ آپ نے اجازت دے دی اور اس نے آپ کے سر اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا، کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جا سکتا ہے۔ شیطان کو بھگانے کا معجزہ۔ اسامہ بن زید نے روایت کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت آپ کی جانب آ رہی ہے۔ آپ نے اپنی سواری روک لی۔ جب وہ قریب آئی تو اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ پیدائش کے وقت سے بیمار ہے۔ آپ نے اس سے لے لیا اور اس کو اپنے سینہ اطہر اور کجاوا کے درمیان بٹھا لیا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دین ڈال دیا اور فرمایا، اے دشمن خدا نکل جا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور بچہ عورت کو واپس دیتے ہوئے فرمایا، لے جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ جب حج کر کے واپس اسی مقام پر پہنچے تو وہ عورت ایک بھنی ہوئی بکری لائی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے بکری کا ایک دست دے دو۔ میں نے دے دیا۔ آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मुझे बकरी का एक और दस्त दो। मैंने दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मुझे बकरी का एक और दस्त दे दो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह बकरी के तो 2 ही दस्त होते हैं, मैंने आपको दोनों दे दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम खुदा अगर तुम खामोश रहते तो जब तक मैं तुमसे दस्त मांगता तुम देते रहते। बाद में आपने मुझसे फरमाया देखो कोई दरख्त या पत्थर है। मैंने अर्ज की कि मैंने खजूर के दरख्त आपस में करीब करीब देखे हैं और पत्थर चुने हुए हैं। आपने फरमाया तुम दरख्त की जानिब जाओ और उनसे कह दो कि तुम रसूलुल्लाह की हाजत के वास्ते आपस में नजदीक हो जाओ, और इस तरह पत्थरों से भी कह दो। चनाचे मैं दरख्तों के पास आया, आपका हुक्म सुना दिया। दरख्त जमीन को चीरते हुए चले आए और बाम यकजा हो गए और पत्थर लड़कते हुए आए और दरख्तों के पीछे इस तरह जमा हो गए जैसे उन्हें चुन दिया गया हो। आपने कदाए हाजत फरमाई और मुझसे कहा कि इन दरख्तों और पत्थरों से कहो कि अपनी जगह वापस चले जाएं। इमरान बिन अल हुसैन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रात के सफर में गए। सहाबा को प्यास लगी। वो सहाबा गालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपके पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम जाओ, तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके ऊंट पर 2 मशकीज़ें पानी है, तुम उसे मेरे पास ले आओ। ये दोनों हज़रात उसके पास पहुंचे। वो दोनों मशकीज़ों के दरमियान ऊंट पर सवार थी। उन्होंने उससे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुलाते हैं। उसने कहा कि कौन रसूलुल्लाह? वो जिन्हें साहबी कहा जाता है। गर्द वो दोनों उस औरत को ले आए। उसके मशकीज़ा से एक बर्तन में पानी दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर दुआ पड़ी। फिर उस पानी को दोबारा मशकीज़ों में डाल दिया गया और मशकीज़ों के छोटे मुंह खोल दिए गए कि लोगों ने अपने अपने बर्तन और मशकीज़ें भर लिए। इमरान बयान करते हैं कि बहुत ज्यादा पानी दिया गया मगर मशकीज़ों में से पानी कम होने की बजाय ज्यादा महसूस होता था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बिछवाया और फरमाया इस औरत के लिए खाना जमा किया जाए। उसका कपड़ा भर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने तेरा पानी नहीं लिया, हमें अल्लाह ताला ने पानी अता किया है। वो औरत जब अपने घर वालों में पहुंची तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल को देख कर आई हूँ, और उसने तमाम किस्सा सुनाया। और वो तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंटी के मुतल्लिक मौजज़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शब हम बगैर कुछ खाए सो गए। सुबह को हम बेदार हुए तो मैं एक दरम में गल्ला और गोश्त खरीद लाया और उसको हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास लाया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रोटी और सालन पकाकर फारिग हुई तो कहने लगी आशा मेरे बाप को भी बुला लाएं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप लेटे हुए थे। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह हमारे घर खाना है, आप तशरीफ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हांडी जोश मार रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा के वास्ते निकाल लो। उन्होंने एक रकाबी में उनके लिए निकाल लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिफ्सा के लिए भी निकाल लो। उन्होंने एक रकाबी में सालन निकाल लिया। यहाँ तक कि फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवाज के लिए निकाल लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाप और अपने शौहर के लिए निकालो, अपने लिए निकालो और खाओ। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि सब का खाना निकाला, जबकि मैंने हांडी उठाई तो वो ऊपर तक भरी हुई थी। फिर हमने खूब सैर होकर खाया। एक भेड़ के मुतल्लिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। नाफ़े बिन हारिस बिन कलदा से रवायत है कि एक सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 सवार थे। एक जगह क़याम पजीर हुए तो वहाँ पानी न था और लोग पानी की वजह से तंग हो रहे थे। इसी असना में एक भेड़ फिरती हुई नजर आई। उसके दोनों सींग बड़े तेज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुआ तमाम लश्कर को सैराब किया और खुद भी सैराब हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ नाफ़े तुम इसके मालिक हो जाओ, मगर मेरा ख्याल है कि तुम मालिक नहीं हो सकोगे। मैंने एक लकड़ी ली, उसको जमीन में गाड़ा और एक रस्सी ली और उस भेड़ को उससे बांध दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और लोग भी सो रहे थे और मैं भी सो गया। थोड़ी देर में बेदार हुआ तो मैंने देखा कि भेड़ मौजूद नहीं है। मैंने उस वाक़या का जिक्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, जबकि आपने फरमाया कि मैंने तुमको खबर नहीं दी थी कि तुम इसके मालिक नहीं हो सकोगे। जो उसको लाया था वही उसको ले गया। एक हरनी का मुतल्लक मौजज़ा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में तशरीफ ले गए। वहाँ आपको आवाज आई कि किसी ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर देखा तो कोई नहीं। फिर दोबारा देखा तो एक हथकरनी बंधी हुई थी और कह रही थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले गए और उससे पूछा कि तुझे क्या है।
उसने कहा कि पहाड़ के दामन में मेरे 2 बच्चे हैं, आप मुझे खोल दें ताकि मैं जाकर उनको दूध पिला सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? उसने कहा हाँ, अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह मुझको अज़ाबे इशार दे। आपने उसको छोड़ दिया और वो हरनी चली गई और उसने अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाया और वापस आ गई। आपने उसे बांध दिया। राबी सोया हुआ था, उसने बेदार होकर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई जरूरत है? आपने फरमाया हाँ, ये जरूरत है कि तुम इस हरनी को आजाद कर दो। चनाचे अराबी ने उस हरनी को आजाद कर दिया। वो हरनी दौड़ती जा रही थी और कहती जा रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। भेड़िए के मुतल्लक मौजज़ा। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। कहीं से एक भेड़िया निकल आया। चरवाहा अपनी बकरियों और भेड़ियों के दरमियान हैल हो गया। भेड़िया अपनी दुम पर बैठ गया और उसने चरवाहा से कहा, क्या तू खुदा से नहीं डरता? तू मेरे और मेरे रिज़्क़ के दरमियान हैल हो गया है। चरवाहा तज्जुब से बोला कि भेड़िया भी इंसान की तरह बातें करता है। इस पर भेड़िया ने कहा कि इससे भी ज्यादा तज्जुब की बात यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरमान के दरमियान लोगों को ज़माना गुज़श्ता की खबरें सुना रहे हैं। चरवाहे ने ये सुनकर अपनी बकरियों का हक्का और मदीना मुनव्वरा ले आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और भेड़िए की गुफ्तगू सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ठीक कहा है, आगाह हो जाओ कि दरिंदों की इंसानों से गुफ्तगू अलामात क़यामत में से है। कसम उस ज़ात की इसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी अब तक दरिंदे इंसानों से कलाम ना करें। और हद ये होगी कि इंसान से उसकी जूती का तस्मा और उसके कोड़े का फंदना कलाम करेगा और इंसान के घर जाने के बाद उसके घर वालों ने जो नया काम किया होगा उसकी रान उसको खबर देगी। एक लड़के के जिंदा होने का मौजज़ा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम सुफ़ा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि एक महाजर औरत आपके पास आई। उसके साथ उसका बेटा भी था जो सने बलूग को पहुंच चुका था। उस लड़के को मदीने की कोई वबा हो गई और कुछ दिन बीमार रह के मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखें बंद कर दी और उसकी तजहीज़ और तकफीन के इंतजाम के लिए फरमाया और मुझसे कहा कि मैं उसकी माँ को इतला कर दूं। चनाचे मैंने उसकी माँ को मुतला कर दिया। वो आई और उसके कदमों के पास बैठ गई और उसके पैर पकड़कर ये दुआ की, ऐ खुदा, मैंने तेरे लिए इस्लाम कबूल किया और बुतों से किनारा कश होकर बुतों को छोड़ दिया और शौक के साथ तेरी तरफ हिजरत की। मुझे बुत परस्तों के सामने शर्मिंदा न कर और इस मुसीबत का बोझ मुझ पर न डाल। मुझ में इस मुसीबत के उठाने की बर्दाश्त नहीं है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अभी इस औरत के ये कलमात पूरे नहीं हुए थे कि उसके बेटे ने अपने कदम मिलाए और अपने चेहरे पर से कपड़ा उतार दिया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेलत तक जिंदा रहा और उसकी माँ उससे पहले ही मर गई थी। प्यारे दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल जर्नी ऑफ लाइट को सब्सक्राइब करते जाइए।